جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, صحیح ہے, تے جنہوں کے وسائل نہیں وہ پڑھنا نہیں چاہتے, صحیح نہیں کہ دونوں سائڈوں پہ ان کے پاس وسائل ہے, کچھ پڑھا نہیں رہے کسی کو. ہاں یہ بھی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وسائل تو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایسے صحیح ہے, ہاں میں اور ریچل صرف سب کچھ کر سکتے ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم لوگ ضرور جو ہے ساتھ کھڑے ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چرچز لیول پر اگر ہم اپنے چرچ کو بھی سپورٹ کریں تو اس سے میری خلیصیت جو ہے, جن چرچز کے پاس ہے, جن خدام کے پاس ہے, تو ضرور اپنا دل کھول کے جو ہے اپنے بچوں کی زندگی میں بیج بوئیں. دیکھیں ہم لوگ اپنے بچوں کو تو کہتے ہیں کہ یار سارے بچے ویل ایجوکیٹڈ ہوں, ہاں اس اسکول میں پڑھیں, لیکن جب کلیسیا کی باری آتی ہے تو پھر اس کو توجہ نہیں کرتے. ایسے بچے جو کہ فیس پے نہیں کر سکتے, ان کے لیے کیا میسج ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں؟ ایک خطرناک کوشچن ہے. وہ اس لیے کہ ڈیفینیٹلی دیکھیں ہر انسان کی ایک لمٹ ہے. یعنی ہم نے ہمارے جو چرچ کے بچے ہیں, ہم نے 13 بچوں کو اکوموڈیٹ کیا اپنے چرچ کے بچوں کو فرسٹ, صحیح ہے. اس کے بعد جو ڈفرینٹ چرچز سے تھے, یعنی اب ٹوٹل جو اسٹرینتھ ہے وہ 37 ہے, صحیح ہے, بچوں کو ہم نے سپورٹ کیا. اس کے علاوہ 40+ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ہم نے CSS کے اندر آلریڈی کیا, یعنی ان کو فائنینشلی ہم نے سپورٹ کیا ہے, وہ لوگ یعنی ان کا رزلٹ آنے والا ہے, تو ہوپ فلی ان میں سے خدا کرے آفیسرز بنے. تمام دیکھنے والوں کی سلامتی ہو. اس وقت میں شہر لاہور میں ہوں اور آج ہم کنگ ٹیلی ویژن کے آفس میں موجود ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ دن بھر کی ریکارڈنگز اور آج چرچ سروس جب ہم نے ان کے ساتھ کی, آج میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہے جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پاکستان میں ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں, پاسٹر جان ایڈی اور مسز جان ایڈی. آج ہم بات کریں گے اسپیشلی جو میٹنگ میں چیزیں ہماری آج ڈسکس کی گئی ہیں. اب کیونکہ انٹرویو اگر ہم بہت بڑھاتے جائیں گے تو کافی لمبا آلریڈی ہو چکا ہے. جو میٹنگ میں آج کی میں ہماری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں وہ تمام تر چیزیں پاسٹر صاحب سے جانیں گے. جی پاسٹر صاحب, سب سے پہلے تو اس خوبصورت بلڈنگ کے لیے, اس چرچ کے لیے میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. اور جتنے دیکھنے والے ہیں انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, خاص طور پہ کہ میری مسیح قوم اور میرے لیڈر جو کہ یونائٹ نہیں ہو رہے, ہم لیفٹ پولنگ کر رہے ہیں, جس سے میری آنے والی نسلیں اور موجودہ میری جنریشن جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا اور تمام جلال ٹی وی کی ٹیم کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے کہ ہم لوگ, یہ ایک مثال ہے کہ سارے اکٹھے ہو کر ہم لوگ خدا کے نام کو عزت و جلال دیں. اور میں ہماری میٹنگ بھی ریگارڈنگ اسی میٹر تھی, اور میں ضرور ایک پیغام سب کو دینا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ آلریڈی پسے ہو گئے ہیں, صحیح ہے, آلریڈی ہم لوگ مشکلات کا شکار ہیں ہر سیکٹر کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ بجائے ہم لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہوں, ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کریں, ایک دوسرے کو یعنی ڈویژن کا کاز بنے, بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بازو بنے, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, صحیح ہے. اور یہی تمام لیڈر سے درخواست ہے. آج لیڈرشپ کی وجہ سے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں, یعنی اگر کوئی ایک پاسٹر جو ہے وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو اسی ادھر نہیں جانا, صحیح ہے, تے دوجا پا دیکھنا تو اسی ادھر نہیں جانا, صحیح ہے. اور دیٹ از ون آف دا ادر تھنگ لائک وی بیکم دا کاز آف ڈویژن, صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام لیڈرز کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. چرچ سے بان کو دیکھیں ڈینومینیشنل سیکٹرز ہو سکتے ہیں, ہم اس کو سمجھتے ہیں ڈینومینیشنل طور پر شاید ہم لوگ ایک دوسرے سے اتفاق نہ کرتے ہوں, بہت سے مسائل ہوتے ہیں شامل, ایک دوسرے کو شاید پسند نہ کرتے ہو, لیکن بطور مسیحی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی آپ پاکستان کے اندر ہیں, جس مرضی ڈینومینیشن سے آپ کا تعلق ہے, ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے, اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے لیڈرشپ کو. سیکنڈ, ہماری جو یوتھ ہے, ہمارے جو نوجوان ہیں, دیکھیں بہت پیشے آپ نوجوان ہیں, خدمت کر رہے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بہت سے اب یوٹیوب چینلز ہیں, بہت سے سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں نوجوان جو ہیں, وہ خدمت کر رہے ہیں. جس طرح آپ جا کر آواز بنتے ہیں, اس طرح دوسرے دوست بھی جو ہے جا کے آواز بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ جو لیڈرز ہیں وہ اپنے نوجوانوں کو سپورٹ کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں جب یہ آواز بنتے ہیں, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ ان کی بیک کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ نہیں کہ اچھا نوجوان لگ جاتے ہیں کہنا شروع کرتا ہے, چاہے وکھرا کامنے شروع کر دیتا ہے, صحیح. ہم لوگ یہ سنتے ہیں, ہم لوگ اپنی لائف کے اندر اس کو دیکھتے ہیں, لیکن ہماری جو زندگی ہے ہم لوگ اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یار ایک بچہ کتنی محنت کر رہا ہے, ایک شخص کتنی محنت کر رہا ہے, اس کے پیچھے کتنی ایک ویڈیو بنانے میں کتنی ایفرٹ لگتی ہے, صحیح ہے. آپ کو کتنا ٹریول کرنا پڑتا ہے, کتنا آپ کو ایکسپینس اس پہ کاسٹ
होती है, आप उस चीज़ को समझते हैं। तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आपकी अप्रिसिएशन जो है, या अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप ज़रूर उसको कहें कि यार तू बड़ा अच्छा काम कर, सही, एंड दे विल बी इनकरेज्ड। प्लीज़ आप ज़रूर अपने चर्च में आपकी जो यूथ है उसको एजुकेट करें। तो यानी बच्चे विलिंग है पढ़ने के लिए, लेकिन वसाइल नहीं है। लेकिन जिन चर्चेस के पास हैं, जिन खुदाम के पास है, तो ज़रूर अपना दिल खोल के जो है अपने बच्चों की ज़िंदगी में बीज बोएं। देखिए हम लोग अपने बच्चों को तो कहते हैं कि यार साढ़े बच्चे वेल एजुकेटेड हों, हाँ इस स्कूल में पढ़े, लेकिन जब कलीसिया की बारी आती है तो फिर असं तो चोरी ना असी कहने कि हाँ ठीक है लगे नहीं लगे सही वो चर्च हदिया दें, चर्च विच करन, लेकिन हमने उनको बैक नहीं करना। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि पासवान की जिम्मेदारी है कि वो ज़रूर अपने चर्च की जो कलीसिया है उसको सपोर्ट करे एजुकेशन सेक्टर के अंदर। यही एक रास्ता है जिससे आप कामयाब हो सकते हैं। बाकी खुदावंद हमेशा अपने लोगों के साथ रहा है, ये खुदावंद का वादा है। खुदावंद कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, हर मुसीबत में, हर परेशानी में खुदावंद अपने जलाल को ज़ाहिर। एजुकेशन सिस्टम जो है जो मौजूदा दौरे हालत जा रही है, इसकी ये डेट नज़र आ रहा है, इसकी वजूहत क्या है? देयर आर सेवरल सेक्टर्स, सही है। बहुत से, एक तो एक माइंड सेट है, सही है, जो पेरेंट्स का है, और दूसरी है लैक ऑफ फाइनेंसेस, तीसरी जो चीज़ है वो है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। पहली जो रीज़न है, अब मैं जैसे मिसाल के तौर पर किसी गवर्नमेंट जॉब में कर रहा हूँ या ड्राइवर से गवर्नमेंट जॉब में फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कहूँगा यार मेरा मुंडा जो है ना वो भी यही जॉब करे, सही है। मैं उत्थे ही कोशिश करनी कि मेरा बच्चा इत्थे ही, सही है, या स्वीपर की जॉब है तो मैं कहूँगा मेरा मुंडा इत्थे लगे कोई गवर्नमेंट की जॉब, सही। हालांकि मेरे बच्चे के अंदर बड़ी कैपेबिलिटी है, वो ऑफिसर बन सकता है। हमने देखा है पीछे एक रिक्शा ड्राइवर थे, उनकी बेटी थी कि बेटा था, उसने, यानी आप उसकी स्कोरिंग देख सकते हैं। फिर और ऐसी बहुत सी मिसालें हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें पेरेंट्स को चाहिए कि अपना माइंड सेट को जो है वो चेंज करें। हम लोग इसको जानें कि जी हमारे बच्चे में क्या एबिलिटी है और उसको सपोर्ट करें। एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग कर्जा उठा लेते हैं किस वास्ते, वो मुंडे नूं जी फ़ोन चाहिए, सही है ना, सही है, और शादी ते जाना है, और जी शरीका दे विच साडा नक नहीं रहिंदा, सही ना, कर्जा चुक लेना। लेकिन जो एजुकेशन की बारी आनी है तो फिर ऐसे कुछ नहीं करना, सही ना। ये नेचुरल चीज़ें हैं, यानी जो मैं यहाँ पे चर्च में भी देखता हूँ, तो मैं लोगों को कहता हूँ कि यार प्लीज़ आप पहली बात है कर्जा ना उठाएं, सही है, और इन चीज़ों के लिए तो ना उठाएं। आप 10 लोगों के साथ भी शादी कर सकते हैं, 20 लोगों के साथ भी कर सकते हैं, करें, सही। तो एक फ़ोन वास्ते तुसी कर्जा चुके हो, ही फ़ोन ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋर्ट करो दी एजुकेशन। वो कुछ समझ आता है इंसान को कि यार हाँ मेरे बच्चे का फ्यूचर है, सही है, फ़ोन के केड़ा फ्यूचर है। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। उसके बाद जैसे मैं पहले की लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी हमारे बच्चों को पता नहीं है कि मैट्रिक के बाद असी करना की है, सही है ना। यानी मैट्रिक के बाद अगर बच्चे ने डॉक्टरेट करनी है, सही है, तो वो जी ICS कर रहा है, कंप्यूटर साइंस वाल चला गया, यानी हमें पता नहीं है। यानी मैं भी जब था मुझे गाइड करने वाला नहीं था कि जी क्या करना है। मैंने ICS करके बाद में बैचलर्स इन कॉमर्स कर ली, यानी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये मैं चाहता हूँ कि ज़रूर इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन हो। और ये 2-3 सेक्टर में फिर डेफिनेटली फाइनेंस की कमी होती है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके पास वसाइल नहीं है, सही है, तो जिन्होंने को वसाइल नहीं वो पढ़ना नहीं चाहते, सही नहीं, कि दोनों साइडों पे यानी उनके पास वसाइल है, कुछ पढ़ा नहीं रहे किसी को। हाँ ये भी है, आप देख सकते हैं कि वसाइल तो हैं, वो कहते नहीं कि ऐसे सही कह रहे हैं। जितने लोग इस वक्त पाकिस्तान बस हमें देख रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री तो हम नहीं कह सकते, वो ऐसे बच्चे जो कि फीस पे नहीं कर सकते, CS वगैरह करना चाहते हैं, स्टडी अपनी प्रोफेशन करना चाहते हैं, किंग टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है कि वो आपके साथ रब्ता कर सकते हैं? खतरनाक क्वेश्चन है। वो इसलिए कि डेफिनेटली देखें हर इंसान की एक लिमिट है। अब इस महीने के अंदर ये 2 बच्चे डाल के 37 बच्चे होंगे जिनकी हमने फर्स्ट सेमेस्टर की फीस यानी पे की। आप देखें अब एक बच्चे की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस अभी आपने बैठे सुना ही है, यानी एक की 60,000 है, एक की 45,000, आप उसको देख सकते हैं। यानी हमने हमारे जो चर्च के बच्चे हैं हमने 13 बच्चों को अकोमोडेट किया, अपने चर्च के बच्चों को फर्स्ट, सही है। उसके बाद जो डिफरेंट चर्चेस से थे, यानी अब टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 37 है, सही है, बच्चों को हमने सपोर्ट किया। इसके अलावा
40+ स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने CSS के अंदर ऑलरेडी किया होगा, यानी उनको फाइनेंशियली हमने सपोर्ट किया है, वो लोग यानी उनका रिजल्ट आने वाला है, तो होपफुली उनमें से खुदा करे ऑफिसर्स बने, अब उनके रिजल्ट का वेट है। तो हम लोग जितना हो सकता है हम लोग करते हैं। हाँ, पूरे पाकिस्तान को अकोमोडेट करना हमारे बस की बात नहीं है, आप समझते हैं, यानी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पूरी दुनिया को अकोमोडेट नहीं कर सकती, पूरे पाकिस्तान को अकोमोडेट नहीं कर सकती, सही है। इसमें हर एक शख्स की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, सही है। हर एक चर्च, हर एक ऐसा खादम जिसको खुदा ने वसाइल दिए हैं, वो ज़रूर कर सकते हैं। प्लीज़ आप ज़रूर जलाल TV से रब्ता करें, जितना हम कर सकते हैं हम लोग ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। अगर कोई नीडी है तो ज़रूर हम लोग करेंगे। मसला ये होता है कि जब मुझे कोई पूछ रहा था कि जी आप पैसा लगाते क्यों नहीं, आपने इतने लोगों को किया, लोग कहते हैं तुसी हेल्प नहीं करते, तुसी हेल्प नहीं करते। मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा देखे, हाँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 की कर सकता हूँ, सही है। अब मैं एक वीडियो मैंने लगाई है, उसके ऊपर मुझे 1000 से प्लस रिक्वेस्ट है, सही है। अब मैं 1000 लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकता, सही है ना। यानी किस तरह मेरे लिए बड़ा मुश्किल है 1000 लोगों को अकोमोडेट करना, यानी एक रिक्वेस्ट के लिए। अब डेफिनेटली जब मैं 1000 लोगों को नहीं करूँगा, वो कहेंगे कर देगी, है तो सारा झूठ है, सही है ना। तो इसलिए वादा करना जिसको इंसान पूरा ना कर सके, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी गलती है। जितना कर सकते हैं हम लोग ज़रूर करेंगे। और एवरी संडे थर्सडे जो है हम लोग ज़रूर अपने जो हमारी जो यूथ है हम लोगों को अकोमोडेट करें। तो मैं इसके साथ साथ ज़रूर कहूँगा जितने हमारे पास्टर्स हैं, दोस्त हैं, NGO सेक्टर है, सही है, जो काम कर रहे हैं और जिनके पास खुदा ने वसाइल दिए हुए हैं, आप भी प्लीज़ हिस्सा बने इस चीज़ का। आप ज़रूर भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई आपकी फैमिलीज़ के इर्द गिर्द या आपके एरिया के गिर्द में कोई ऐसी शख्सियत हो सकती है जो एजुकेशन में यानी बढ़ना चाहता हो, तो उनके पास वसाइल में आप ज़रूर उसका साथ बन सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक टीम वर्क है, ये वन मैन शो नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि जी मैं कर सकता हूँ या मैं और रेचल सिर्फ सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम लोग ज़रूर जो है साथ खड़े हैं और जितना हो सकता है हम लोग। आप ये समझते हैं कि चर्चिस लेवल पर अगर हम अपने अपने चर्च को भी सपोर्ट करें तो इससे मेरी कलीसिया जो है, कलीसिया के बच्चे जो हैं वो तरह से बिल्कुल हो सकता है। हम लोग एक नई मूवमेंट अभी लॉन्च कर रहे हैं और दोस्तों को इकट्ठा करने का रीज़न ये है कि एटलीस्ट देखिए, एक पासवान अगर उसके चर्च के 60 मेंबर्स हैं, 60 फैमिलीज हैं, उनको पता होता है कि यार मेरी किस फैमिली में बच्चे एजुकेटेड हैं और उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर एक चर्च महीने में या 2 महीने की ऑफरिंग इकट्ठी करके अगर उस फैमिली के बच्चे को एजुकेट कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो चर्च का एसेट है, सही ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज आपने सुना देखे बच्चे यहाँ पे हिब्रू कर रहे हैं, यानी एजुकेशन सेक्टर के अंदर। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि चर्च जो है वो ग्रो कर रहा है। और इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंट चर्चेज जो है, डेफिनेटली बहुत से चर्चेस कर रहे हैं, उन्होंने स्कूल्स बिल्ड किए हुए हैं। अब हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, खुदा करे पॉसिबल हो टिल नेक्स्ट ईयर हम लोग स्कूल जब लॉन्च करेंगे। अभी इसलिए हम लोग इसको डिक्लेयर नहीं कर रहे कि जब तक होना जाए, जब हो जाएगा फिर असी लॉन्च कराएंगे। फिर असी उम्मीद नहीं है 100% ये सुनसी के फजल से। सिर्फ हम लोग ये नहीं चाहते कि हम वादा करके तो फिर लोग संताने ना दे को भाई ने किया, सही ना। यानी चर्च हमने जब किया, हमने किसी को वादा नहीं किया, चर्च बन गया, खुदा की शुक्रगुजारी, हमने सिर्फ शुक्रगुजारी की। ये भी स्कोर भी बना के बताइए यीशु के फजल से। इसके साथ देखें और इसके साथ साथ हमारे ऑलरेडी 3 चल रहे हैं, 13 चल रहे हैं स्कूल्स, 13 स्कूल्स ऑलरेडी चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने भी लॉन्च नहीं किया। मॉनिटर जरूर कर रहे हैं, उसको फाइनेंस कर रहे हैं, रन जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग खुद शो ऑफ नहीं हो रहे। और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर, मैं आपको लोकेशन बताऊँगा, आप ज़रूर जाकर विजिट कीजिए। और इनफैक्ट कल जो है हम अभी उनके बुक्स हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, वो भी हमने ड्रॉप किए हैं, कल उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करें। यानी यहाँ पे बुक्स भी फ्री है, यूनिफॉर्म भी फ्री हैं बच्चों के, सिर्फ आकर पढ़ना। जिस तरह परसा बता रहे हैं एजुकेशन पर ये काम कर रहे हैं, ये चीज़ें हमारी मीटिंग में ऑलरेडी शेयर हो चुकी हैं। सिस्टर जी ने जब स्टूडियो की जानिब हम जा रहे थे तो हमें ऑडियो वीडियो स्टूडियो दिखाया है। तो ये खुशखबरी उन वर्शिपर बहनों के लिए, भाइयों के लिए, उनके लिए जो जिनके पास वसाइल नहीं हैं, उनके लिए इन्होंने अपने दरवाजे खोले हैं चर्च के कि वो आकर रिकॉर्डिंग्स करवा सकते हैं। ऑडियो भी फ्री, वीडियो भी फ्री। जानते हैं सिस्टर जी से। जी सिस्टर जी, कितनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है, फिर आपने खूबसूरत चर्च भी दिखाया, स्टूडियो भी दिखाया, और नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डिंग के लिए, वो बेटी और बेटे जो अफोर्ड नहीं कर सकते और वर्शिप करना चाहते हैं? बिल्कुल कलाम में से मैं एक ही बात करूँगी कि बाइबल कहती है कि तुमने मुफ्त में पाया
اور مفت میں بانٹو. اور میں سمجھتی ہوں چاہے آپ کو کوئی بھی توڑا زندگی میں اگر خدا نے دیا ہے تو اسے سیل مت کریں. خدا نے آپ سے پیسے نہیں لیے, صحیح ہے, اس نے فری میں آپ کو برکت دی ہے. تو اگر آپ کو خدا نے توفیق دی ہے تو آپ بھی جو ہے وہ فری میں اس کو بانٹیں تاکہ جلال یسوع کے نام کو ملے. اور چونکہ آپ کے ٹی وی کا نام بھی جلال ہے اور جلال خدا کو ملنا چاہیے, اور اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے ٹی وی کی تمام تر ٹیم کو اور آپ کی ساری محنت کو ہم جو ہے وہ سراہتے ہیں, سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ کلیسیا پاکستان کے اندر اور ملک پاکستان کے اندر بہت اچھا کام کر رہی ہے. اور ہماری دعا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ خدا جلال ٹی وی کو سیراب کرے, برکت دے, پراسپر کرے. اور جہاں پر بھی جلال ٹی وی کو ہماری ضرورت ہے ہم حاضر ہیں, اور ہم اپنی یوتھ کے ساتھ کھڑے ہیں, بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کلیسیا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جہاں پر بھی کسی بھی نوجوان کو, کسی بھی بیٹے کو, بیٹی کو ہماری ضرورت ہے تو ہم روحانی ماں باپ ہوتے ہوئے, مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. تھینک یو سو مچ. جی دوستوں, جس طرح آپ نے خوبصورت گفتگو سن لی ہے, جتنی بہنیں, بیٹیاں اور بزرگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو آنا چاہتے ہیں, آپ اس جگہ پر تشریف لائیں. انتہائی خوبصورت چرچ ہے. چرچ کو دیکھ کر ہی میں سمجھتا ہوں آدھی ریکارڈنگ تو چرچ دیکھتے دیکھتے ہو جاتی ہے, اور باقی کی جو کثر ہے وہ اسٹوڈیو میں جا کے نکل جائے گی. اس کے ساتھ اپنے میزبان خرم سی کو اجازت دیجیے. خدا مطلب سب کے ساتھ ہو.